تو ادھر ایسے بھی شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان قاعدے سے تقریر سنے. شیطان کو اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی مسلمان تقریر سن لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ شرابی ہے تو شراب پینے سے توبہ کرنے والا ہو جائے, جواری ہے تو جوا کھیلنے سے توبہ کرنے والا بن جائے, ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرنے والا بن جائے. ایسے تو جلسے کا نام تحفظ عقائد کانفرنس ہے. آپ اس سے پیشتر کئی عظیم خطبہ اسلام سے آپ نے گفتگو سماعت کی, امید ہے تحفظ عقائد پر گفتگو ہوئی ہو. یقیناً اسلام جب بھی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے صاحب ایک درخت موجود ہو, درخت کی شاخیں کٹ جائے لیکن درخت کی ٹہنیاں کٹ جائے لیکن درخت کی جڑ اگر مضبوط ہے, اگر زمین سے اس کا رشتہ ہے, ممکن ہے اس میں شاخیں نکل پڑے, ممکن ہے اس میں پتیاں نکل پڑے, ممکن ہے اس میں پھول نکل پڑے, لیکن جڑ ہی اکھڑ جائے تو ہری شاخیں بھی مرجھا جائے گی. اگر جڑ ہی نکل جائے زمین سے ہری پتیاں مرجھا جائے گی. ایسے ہی لوگوں عقیدے اور عمل کا رشتہ ہے, عقیدہ عمل کا جڑ ہے. اگر جڑ کا رشتہ مصطفیٰ جانے رحمت سے مضبوط ہے, ہو سکتا ہے تیرے سجدے مقبول ہو جائے, ہو سکتا ہے تیرے قیام مقبول ہو جائے, ہو سکتا ہے تیری عبادتیں مقبول ہو جائے, ہو سکتا ہے تیری تلاوتیں مقبول ہو جائے. لیکن اگر تیرے عقیدے اور ایمان کا رشتہ آمنہ کے لال سے مضبوط نہیں ہے تو ایک نہیں کروڑوں سجدے کر لے. آپ کا اقبال نے کہا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو جتنے لوگوں کو اچھا لگا ذرا وہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذرا صرف مرد اٹھائیں گے, عورتیں نہیں, ٹھیک ہے؟ اور جب مرد اٹھانا بند کر دیں گے تو عورتوں کو مجبوراً اٹھانا پڑے گا. افسوس تو اسی بات کا ہے, مرد جلسوں میں آتے ہیں صاحب درخت کے نیچے بیٹھے گا, مرد جلسوں میں آئے گا سڑکوں پہ گھومے گا, مرد جلسوں میں آئے گا چائے کی ہوٹلوں میں رہے گا. صاحب یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری راتیں ٹورسٹ کی طرح کٹ جائے, یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہماری راتیں درختوں کے نیچے یوں ہی آپس میں گپ سپ میں گزر جائے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر عورتیں جلسوں میں آ گئی تو سیرت فاطمۃ الزہرا سیکھ کر جائے گی, اور مرد جلسے میں آ گئے تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائے. تو جتنے لوگ سیکھنے کے بعد میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو آگے جگہیں خالی ہے, ہاں ماشاءاللہ, پیچھے والے بھی چاہیں تو آ کے بھر سکتے ہیں, آپ بھی چاہیں تو دو دو قدم کھسک سکتے ہیں. فیصلہ آپ کے اوپر ہے, میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہاں ماشاءاللہ, دو چار قدم آگے بڑھیے. ہاں ماشاءاللہ, آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا, آپ لوگ بھی دو چار قدم, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جہاں سے جہاں تک جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ صاحب یہ سرزمین, یہ علاقہ میرے امام کا علاقہ ہے, مرکز عشق و محبت کا علاقہ ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ و رضوان کا علاقہ ہے. اس علاقے کے عالموں سے بھی پیار ہے, اس علاقے کی مٹی سے بھی پیار ہے. صاحبوں یاد رکھنا, نبی کا ایک ایسا معجزہ جو آج تمہارے پاس موجود ہے, تم کہو گے مولانا اس معجزے کا نام کیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا. صاحبوں یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ دارالعلوم ہے. سبحان اللہ, بے شک.
अच्छा, मदरसा नूरुल उलूम जिसमें हम और आप तशरीफ रखते हैं, आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें रच रही है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मास मीडिया आप समझते हैं, मास मीडिया फिर भी दुनिया को कहा जाता है मास मीडिया हो। आज पूरी दुनिया तनहा जिस सिस्टम के पीछे पड़ी है, उस सिस्टम का नाम मजहब इस्लाम है। सारी दुनिया के निशाने पर हम हैं। आज कोई हमारी तबलीग को निशाना बना रहा है, आज कोई हमारी तालीम को निशाना बना रहा है, आज कोई हमारे मदरसों को निशाना बना रहा है, आज कोई हमारी दाढ़ी और टोपी को निशाना बना रहा है। साहब, हालात इतने बुरे हैं, बोलने वाली ज़बानें बाकी नहीं है। आज हमारे पास माएँ नहीं जो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकता है हमारे जज्बात, हमारे लहजे जलसों तक सिमट करके रह जाए, और आज होता भी यही है। ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी सिर्फ नामों से आबाद हो, ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी सिर्फ चादर और फातिहों से आबाद हो, ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी सिर्फ कुरान खानी से आबाद हो। नहीं साहब, आज जिंदगी में किरदार मुस्तफा की जरूरत है, आज जिंदगी में सीरत इमाम हुसैन की जरूरत है, आज औरतों की जिंदगी में सीरत फातिमा ज़हरा की जरूरत है। क्या बात है साहब कि आज मेरे इमाम ने लिखा, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, आज जिसे चाहा जो चाहा बोल दिया। साहब, जिसने जो चाहा अटैक कर दिया और हमला कर दिया। आज किसी को कुरान पसंद नहीं, आज किसी को नमाज पसंद नहीं, आज किसी को दाढ़ी पसंद नहीं, आज किसी को हिजाब पसंद नहीं, आज किसी को नबी की सुन्नत पसंद नहीं। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, गैरों को पसंद आए या ना आए, लेकिन सुल्तान रज़ा अपनों से पूछना चाहता है। पूछना चाहता हूँ, हम उन्हें इस्लाम क्या समझाएं? आज जरूरत है अपनी कौम के बच्चों को इस्लाम समझाने की, आज जरूरत है अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम समझाने की, आज जरूरत है अपने कौम के बेटों को इस्लाम समझाने की। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, आप कुरान पढ़ो, कोई आपको रोकने वाला है? आप नमाज़ें पढ़ो, कोई आपको रोकने वाला है? अरे बोलिए, कोई रोकने वाला है? जरा हाथ उठाकर बोलिए, आप नमाज पढ़े कोई रोकने वाला है? आप कुरान पढ़े कोई रोकने वाला है? आप आजान दे कोई रोकने वाला है? लेकिन जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं रहूं न रहूं, मेरी बातें आपको याद दिलाती रहेगी। साहिबों, वो दिन दूर नहीं है जब भारत के पार्लियामेंट में कहा जाएगा फजर की आजानें बंद कर दी जाए, इशा की आजानें बंद कर दी जाए। पूछा जाएगा क्यों? तो ये कहेंगे इसलिए कि फजर की आजान होती है अगर मस्जिद में 2 से 4 मुसलमान ही नमाज पढ़ने जाते हैं, इशा की आजान होती है मस्जिद में 2 से 4 ही मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं। तरक्की याफ्ता जमाना है, हर घर में मोबाइल मौजूद है, लोग चाहे तो आजान की जगह अलार्म लगाकर अब मस्जिद को पहुंच सकते हैं। 4 लोगों की वजह से 50,000 बस्ती के मर्द औरत की नींद को खराब नहीं किया जाएगा। ये मेरी कौम के लोगों, दौरे जदीद के एक शायर ने कहा था, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मस्जिदों से भागने वालों, याद रखना, सिर्फ जलसे में नारा लगा लेने से मस्जिदें नहीं बचेंगी। सुल्तान रज़ा तुमसे कहना चाहेगा, मस्जिदों को आबाद करने से हमारी मस्जिदों की हिफाजत होगी। तुम चाहते हो कि आने वाले दिनों में कोई शख्स आजान के खिलाफ उंगलियां न उठाए, तो फजर की आजान हो तो इस्लाम की माए, तुम अपने घरों में मुसल्ला बिछाओ और अपने शौहरों को मस्जिद में सजदा करने के लिए होकर ज़माना ये जान जाए, आजान सिर्फ बरकत के लिए ही नहीं होती। यही वो आजान है कि आजान होती है तो घर में औरतें नमाज पढ़ती है और मस्जिदों में मुसलमान बच्चे और सरज़मीन मोहम्मद की उलमाए अहले सुन्नत। मुझे उम्मीद है
इंशाअल्लाह कितने लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि हम फजर की नमाज में मस्जिदों में पहुंचे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह सारे लोग, आप तो बड़े अमीर हो। एक बात मुझे बताओ साहब, बुरा मत मानना, आज अल्लाह ने आपको किस चीज की कमी दी है? बताओ, आज हमारी मस्जिदों में कितने इंतजाम है साहब। गर्मी में जाओ तो एयर कंडीशन मौजूद है, ठंडी में जाओ हीटर और गीजर मौजूद है। साहिबों, इतना इंतजाम कि अब का मुसलमान कोई कहे मस्जिद में तबीयत नहीं लगती। साहब, वो जमाना सहाबा का था जब मस्जिद की छत चूती, मस्जिद के छत से पानी टपकता था, फिर भी सहाबा उस कीचड़ वाली जमीन पे अपनी पेशानी को झुका देते थे, अपनी पेशानी को रख देते थे। और से मेरी बात सुनिएगा, एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कितने वक्त की? जरा पांचों उंगलियां उठाकर बोले, कितने वक्त की? कितने वक्त की? अच्छा साहब, ये जलसा चूंकि तहफ्फुज़े अकायद कॉन्फ्रेंस है तो 4-5 मिनट बोलकर हक अदा कर लेने दीजिए, वरना अपने इमाम को भी मुंह दिखलाना है। मेरे इमाम ने जमाने को दरसे वफा दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, और से सुनिएगा, बात नमाज की चल रही है। सहाबी रसूल है, आका के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। 4 वक्त की नमाज पढ़कर आका के साथ 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में हाजिर होते, मगर फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद फौरन सहाबी रसूल उठते और अपने घर को चले जाते। एक दिन सहाबे कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरखास्त पेश की, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी है, 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में शामिल रहते हैं, मगर फजर की नमाज के बाद दुआ में शामिल नहीं रहते। या रसूल अल्लाह, पूछा जाए आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है? आज कौनैन के ताजेदार आका जानते थे, आका तो दिलों के राज को जानने वाले हैं। मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, मैं कहता हूँ सारे एहसानात को एक तरफ रखो, बरेली के इमाम के एहसान को एक तरफ रखो। कसम खुदा की, उनके इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर। उन्होंने हमारे दिलो दिमाग को रोशन किया, उन्होंने हमारे क़ुलूब को इसके मुस्तफा के चराग से रोशन किया, उन्होंने हमारी खानकाहों को अज़मत औलियाए कराम के चराग से रोशन किया। मैं तो कहता हूँ साहब, पूरी जिंदगी हम उनका गुण गाएं फिर भी कम है, लेकिन आज कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है, जिन्हें है उन्हें होने दीजिए। आप जिस दर पर है वहां पड़े रहिए, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मेरे इमाम ने जमाने को दर्श दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी को कैसे खबर न होगी कि मेरा आशिक, मेरा सहाबी क्यों सलाम के बाद चला जाता है? आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे साथी तुमसे पूछना चाहते हैं, आखिर फज्र की नमाज के बाद फौरन घरों को क्यों चले जाते हो? सुन्ना इस्लाम की मुकद्दस माँ, मेरे घर में इतनी गरीबी नहीं आई है, ये उस गरीब मुसलमान की कहानी है जिनके किरदार से इस्लाम जिंदा हुआ है। ये उन गरीब सहाबा की कहानी है जिन्होंने इस्लाम को पूरे जमीन पर फैलाया है और पहुंचाया है। सुनना जरा गौर से, सहाबी रसूल खड़े हो गए। फजर की नमाज के बाद आका ने कहा, ठहर जाओ, तुम्हारे साथी जानना चाहते हैं कि तुम आखिर फजर की नमाज के बाद घर क्यों चले जाते हो? आंखों में आंसुओं के कतरात है। सहाबी रसूल खड़े हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, आज मेरा राज खुल जाएगा, आज मेरे साथी मेरी बात को जान जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मामला ये है, मेरे घर में एक ही कपड़ा है और आका 5 वक्त की नमाज में 4 नमाजों का वक्त लंबा होता है, इसलिए मैं नमाज पढ़ने के बाद, जमात से नमाज पढ़ने के बाद आका जी दुआ के लिए ठहर जाता हूँ, लेकिन फज्र की नमाज के बाद वक्त बहुत कम रहता है। मेरे घर में एक ही कपड़ा है जिसे मैं पहन कर आता हूँ,
मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ और घर जाकर उस कपड़े को खोलता हूँ तो मेरी बीवी उसी कपड़े को पहनकर खुदा की बारगाह में सजदा करती है। ए आका, मुझे डर सा इस बात का खौफ होता है कि फजर की नमाज के बाद दुआ मांगूं तो कहीं मेरी बीवी की नमाज कज़ा ना हो जाए, कहीं मेरी शरीके हयात खुदा की बारगाह में उसके सजदे कज़ा ना हो जाए। सुल्तान रज़ा आज इस्लाम के मुक़द्दस शहजादे और शहजादियों से पूछना चाहता है, उनके घर में तो एक ही कपड़ा था मगर बीवी घर में नमाज पढ़ती थी और शौहर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता था। बताओ क्या नक्शल कौन सा मुंह लेकर खुदा की बारगाह में जाओगे? क्या कुरान ने नहीं कहा बता तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? रब्बे कदीर तुझसे पूछेगा, पता गर्मी के लिए मस्जिद में इंतजाम था तू क्यों नहीं आया? ठंडी के लिए मस्जिदों में इंतजाम था तू क्यों नहीं आया? तेरे घर में फजर की के लिए ठंडी में वजू करने के लिए तेरे घर में गीजर मौजूद था, तुमने वजू क्यों नहीं किया? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इस्लाम की बका चाहती हो, तुम चाहती हो इस्लाम यूं ही फले फूले तो सिर्फ जलसों में नारे लगाने से या सिर्फ फातिहा ही करा लेने से इस्लाम जिंदा नहीं होगा। फातिहा भी कराओ और सीरत सहाबा को अपनी जिंदगी में भी बसा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, सरज़मीन मोहर का पट्टी। सुभान अल्लाह। अब साहिबो याद रखिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, नबी का एक ऐसा मोजेज़ा जो आज हर जगह मौजूद है, उस मोजेज़े का नाम है कुरान। नबी का ये ऐसा मोजेज़ा है जो हर जगह मौजूद है। आलिम के पास कुरान है, जाहिल के पास कुरान है, मदरसों में कुरान है, खानकाहों में कुरान है, मस्जिदों में कुरान है। ओए लाल टी शर्ट, खैरियत, कहाँ जा रहे हो? जलसा खत्म हो गया? माशाअल्लाह, बेचारा जरूरत से जा रहा है। ऐसे भी जाने वालों को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है जाने वालों को? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ बैठिए, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे, कुछ लेकर के जाना जरूरी है। कल होकर तेरी माँ ने अगर तुझसे पूछ दिया कि बता मेरे बेटे तूने जलसे में क्या सीखा है, कह देना अल्लामा तौसीफ रजा ने ये बताया, हमें दर्स दिया कि साहब आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। और से मेरी बात सुनना, दुनिया में नबी का एक ऐसा मोजज़ा है कुरान जिसकी अज़मत सारी दुनिया में मौजूद है। लाइब्रेरी किसी की हो मगर कुरान उसके पास मौजूद है। साहब अमेरिका की लाइब्रेरी हो, चाइना की लाइब्रेरी हो, रशिया की लाइब्रेरी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा किताबें तो दुनिया में बहुत है और किताबें बहुत लिखी गई। बच्चों के लिए अलग किताब, नौजवानों के लिए अलग किताब, बूढ़ों के लिए अलग किताब, औरतों के लिए अलग किताब। ऐसा नहीं होता कि साइंसदान जो किताब पढ़े वो इंजीनियर भी पढ़े, इंजीनियर जो किताब पढ़े वो डॉक्टर भी पढ़े, डॉक्टर जो किताब पढ़े वो प्रोफेसर भी पढ़े। ऐसा नहीं होता। लेकिन कसम खुदा की ऐसी कोई किताब लाओ बच्चा नर्सरी का हो फिर भी पढ़े, बच्चा मैट्रिक का हो फिर भी पढ़े, बच्चा इंटर का हो फिर भी पढ़े, बच्चा डॉक्टरियत का हो फिर भी पढ़े। आप कहेंगे नहीं मौलाना, नर्सरी के लिए अलग किताब है, यूकेजी एलकेजी के लिए अलग किताब है, मैट्रिक के लिए अलग किताब है, इंटर के लिए अलग किताब है, डॉक्टर के लिए अलग किताब है, प्रोफेसर के लिए अलग किताब है, साइंसदान के लिए अलग किताब है, ज्योग्राफी के लिए अलग किताब है। मैंने कहा इतनी किताबों का बोझ होने वालों एक ही किताब लिख दो। कहा नहीं मौलाना, ऐसी कोई किताब नहीं जिसे बच्चा भी पढ़े, जिसे जवान भी पढ़े, जिसे डॉक्टर भी पढ़े, जिसे इंजीनियर भी पढ़े, जिसे प्रोफेसर भी पढ़े, जिसे साइंटिस्ट भी पढ़े, जिसे मर्द भी पढ़े, जिसे औरत भी पढ़े। मैंने कहा कोई किताब नहीं मगर मेरे नबी का मोजज़ा कुरान एक ऐसी किताब है। बच्चे को
देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, जवान को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, डॉक्टर को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, प्रोफेसर को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, साइंटिस्ट को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है, औरत को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रही है, बहू को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रही है, आलिम को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है, आलिम तो आलिम, जाहिल को भी देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा वो साहब आलिम तो कुरान समझ रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है, मगर तुम तो जाहिल हो, तुम कुरान लेकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोल पड़ा ए सुल्तान रज़ा, तुझे पता नहीं है दुनिया में जितनी किताबें हैं उसे सिर्फ पढ़ने वाला कामयाब होता है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जाहिल भी कुरान को उठा ले तो उठाए तो उठाना सवाब है, देखे तो देखना सवाब है, और कुरान को सुने तो कुरान का सुनना, सुभान अल्लाह, कुरान का सुनना सवाब है। अब किताब एक ही सबके लिए बराबर है, नर्सरी वाला कुरान पढ़ रहा है, पीएचडी वाला कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, जाहिल साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीद साहब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साहब ये मुकद्दस किताब नबी का ये मौजज़ा है ही ऐसा मौजज़ा जो सबके लिए काफी है, जो सबके लिए शाफी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ आज कुरान से दूरी की वजह क्या है? आज हम कुरान से इतना दूर क्यों है? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो साइंस की बोली बोलते हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कुरान बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ूंगा मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने कहा साहबो नकीब अहले सुन्नत से मैंने कहा हुजूर क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है कि डॉक्टर की किताब मैं पढ़ूं और डॉक्टर आप बन जाए, प्रोफेसर की किताब मैं पढ़ूं प्रोफेसर आप बन जाए, इंजीनियर की किताब मैं पढ़ूं इंजीनियर आप बन जाए? ऐसी कोई किताब है कि मैं पढ़ूं और फायदा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब किबला को हो जाए? हजरत ने कहा सुल्तान रज़ा ऐसा नहीं होता कि किताब मैं पढ़ूं डॉक्टर आप बनो, किताब मैं पढ़ूं इंजीनियर आप बनो, किताब मैं पढ़ूं प्रोफेसर आप बनो। मैंने कहा हुजूर नहीं होता, मगर हजरत ने कहा सुल्तान रज़ा कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब के पढ़ता जिंदा है, कब्र में मुर्दों को जन्नत की जमानत दिलाती है। पढ़ता बेटा है फायदा बाप को पहुंच जाता है, पढ़ता बेटा है फायदा माँ को पहुंच जाता है, पढ़ता बेटा है फायदा खानदान को पहुंच जाता है। एक बच्चा मदरसा नूरुल उलूम का कुरान सीने में बसाता है, पूरा इलाका उसकी तिलावत से बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत का ये ऐसा मौजज़ा बहुत सुनिए साहिबों, मैं वो नहीं आपके जज्बात के साथ कुछ देर खेल कर चला जाऊं, और से मेरी बात सुनिएगा, बात समझ में आएगी। अल्लाह अल्लाह मेराज की शब है, आमिना के लाल है, आराम फरमा रहे हैं, सिदरा के मकीन रूहुल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं। याद रखिएगा अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, फरिश्ते मासूम अनिल खता होते हैं, फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, न जानबूझकर न अनजाने में। फिर रूहुल अमीन से गलती हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। किताबों में आता है सिदरा के मकीन है, अल्लाह 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 के नबी को खुदा का मेहमान बनाकर लेकर जाने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह आ गए, देखा महबूब आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अदब सीखो अदब, ये वही जिब्रील अमी है। उठाइए बुखारी शरीफ, नबी के सामने ज़ानुए अदब तय करके बैठे हैं और बैठकर सहाबा को इस्लाम सिखला रहे हैं। ये वही जिब्रील अमी है। उठाओ हदीस की किताबें, ये वही जिब्रील अमी है जो सिदरा से बार बार नबी की बारगाह में आ रहे हैं। ये वही जिब्रील अमी है जो कभी मक्के में कुरान लेकर आ रहे हैं, कभी मदीने में कुरान लेकर आ रहे हैं। जिब्राइल अगर मक्के और मदीने में कुरान लाए, मानने में लोग प्रॉब्लम, तो जिब्राइल नबी की बारगाह
رہی ہے؟ پوچھئے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے جبریل امی آتے ہیں، دیکھا محبوب آرام کر رہے ہیں، کہا نام لے کر جگاؤں تو بے ادبی ہے، ہاتھ پکڑ کے جگاؤں تو بے ادبی ہے، اللہ اللہ آقا کو اگر نام لے کر اٹھاؤں تو بے ادبی ہے۔ ادب کیا ہے؟